myself Dr. Mukesh Kumar, and I am inviting you in our ABC. Yes, it is among biology classes. So yes, I am your botany mentor and I will take your botany classes. First of all, I would like to introduce myself that I am in this field in the last 20 years and mentoring top 10 students through different organizations. You will be happy to know AIR1, yes, rank 1 in NEET 2018, Kalpana Kumari was my main mentorship. So I am very happy with you also. So you will get the excellency of botany. I will provide you the honey of botany of each and every term, chapters and unit. Okay, so with my experience, I would like to tell you that at present I am the king of Pocha in botany. So I have started my botany career from Bhubaneswar. Yes, in Akash Institute I was a student there. Later on I was in Amity University, AIC. I was also a HOD and expert. 5 years, 6 years in Amity, Akash Bhubaneswar Center. Later on again I got my sandwich staff called by Akash Institute again and work as a senior botany faculty as well as associate dean there to control the students, top class students, top 100 students, as well as guide some of the faculty members during the orientation program. So this is my little introduction. Yes, you will happy to know whenever you go on Google and type Dr. Mukesh Kumar books, you will get more than a dozen books, a biology textbook for undergraduates up to the PG postgraduate students. So it's our little introduction. Now I am with you to start our ABC. Yes, it is, as I told you, among the biology classes. अमुक में अचूक, तो ये अचूक है, हम अचूक, आप अचूक और आपका हर एक बार अचूक होने वाला है. सो हम इस प्रतिज्ञा के साथ जुड़े कि नीट के आने वाले एग्जाम्स में +2 और 11th क्लास के एग्जाम्स में जितने भी हम पढ़ेंगे, यू विल बी अनपैरल्ड एट इंडिया लेवल. फाइन. सो आई विल ऑल्सो want to tell you that on this online platform you will get 11th class courses, you will get 12th class courses, and you will also get 13th class courses, that is 12 pass out student courses. So parallel all these 3 courses will run. You will get notification later on and chapter wise it will be introduced to you. So for a demo session, yes, for the demo session, I will want to discuss you a very small and very important, interesting topic of our chapter, Plant Kingdom. Yes, in this Plant Kingdom, the last topic is plant life cycle or plant life pattern along with alternation of generation. Yes, so this is last topic of Plant Kingdom class 11 and the unit is yes, diversity of living organism. हाँ, हम इसे प्यार से डोलो बोलते हैं. तो इस डोलो के अंदर जो हमारे पास प्लांट किंगडम है, इसके अंतर्गत हम प्लांट लाइफ साइकिल की बात करेंगे. अब इस प्लांट लाइफ साइकिल में हम समझे कि कहानी कहाँ से शुरू होती है. जब कभी भी हम एक प्लांट की बात करते हैं तो इस प्लांट के अंदर 2 इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन के आते हैं. राइट,
एक ऐसा पार्ट होता है जो हैप्लॉइड हो सकता है कुछ ऐसे में स्ट्रक्चर हो प्लांट के जो डिप्लॉयड हो और ये ही हैप्लॉइड एक सेल और डिप्लॉयड जो दूसरा सेल है सेल डिवीजन, हाँ माइटोसिस, इसको माइटोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद ये पूरी एक बॉडी बनके तैयार हो जाती है जो ऐसी होगी हैप्लॉइड होगी, बिल्कुल सही। और इसके कारण ये आप देखो कि ये जो बॉडी बनाता है इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं या हम इसे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बोल सकते हैं। तो आपने क्या देखा, गैमेटोफाइट कैसा होगा बताओ, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? बिल्कुल सही, ये स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा हमेशा, चाहे वो किसी भी प्लांट की बात की जाए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसी भी जगह यदि आपको बात हो कि बताओ गैमेटोफाइट कैसा होता है, ये वो हैप्लॉइड होता है। सिमिलरली यदि हम स्टूडेंट की बात करें, ये भी माइटोसिस करेगा, इसकी भी बॉडी बनेगी और जब इसकी बॉडी बनकर तैयार हो जाती है तो आप देखो ये बनाता है स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर, ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये जो गैमेटोफाइट है ये फर्दर जाके गैमीट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है जो गैमीट्स होते हैं वो भी कैसी होती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होते हैं ना। जब हम स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप देखें ये स्पोर का प्रोडक्शन करता है। अगेन यही स्पोर का जो प्रोडक्शन होता है दैट स्पोर प्रोडक्शन मियोसिस के बाद होता है और यही जब स्पोर बनके तैयार होती है कहानी तो ये जाके बनाता है गैमेटोफाइट। इसका मतलब ये हुआ कि स्पोरोफाइट से ही आप देखो गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ है, किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। हम ऐसा करते हैं, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं, एक लाइफ साइकिल पर टर्न में हम आराम से समझ सकते हैं। जैसे चलो ये भी हमारे पास एक फ्लो चार्ट, ये एक डायग्राम देखें आप, हमारे पास स्पोरोफाइट है, बता सकते हैं क्या है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? जल्दी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही, सही कहा आपने, ये डिप्लॉइड होता है, सही कहा आपने। और यही जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, बिल्कुल सही, ये स्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। और यही स्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होती है, बिल्कुल सही बात, रिडक्शन डिवीजन इसी को बोलते हैं, मियोटिक सेल डिवीजन या मियोसिस हम बोल सकते हैं, तो हमारे पास बन के तैयार होता है स्पोर। अब ये स्पोर क्या होगा, बिल्कुल सही, यही हैप्लॉइड बॉडी है जो मैं भी बता रहा था। और यही स्पोर फिर आप देखें तो ये बना के क्या देगा हमें, गैमेटोफाइट बना के देता है। तो गैमेटोफाइट बॉडी चूंकि ये N से है तो ये भी कैसी होगी, N होगी। और ये गैमेटोफाइट हमें क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। और ये गैमीट्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड से फीमेल गैमीट्स। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या बना देते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और ये जाइगोट डिप्लॉइड बॉडी है, फर्स्ट ट्वेल बॉडी है, और यही जाइगोट हमें क्या बना के देता है, स्पोरोफाइट बना के देता है। तो इस तरीके से आप देखो ये जो गैमीट का प्रोडक्शन हुआ, जैसा भी मैंने कहा मेल गैमीट्स होंगे, फीमेल गैमीट्स होंगे और दोनों मिलकर जाइगोट बनाएंगे और फिर जाइगोट के बाद ये क्या बनकर तैयार हो गया, गैमेटोफाइट। मतलब ये कि यहाँ पर एक बॉडी आया है स्पोरोफाइट जिसने गैमेटोफाइट को बनाया, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट एग्जामिनेशन में कि भाई बताओ कि गैमेटोफाइट का पहला सेल कौन है, या गैमेटोफाइट किससे डेवलप होता है, स्पोर से या जाइगोट से। बिल्कुल सही बात, ये गैमेट से नहीं बल्कि ये स्पोर से डेवलप होता है। क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट कौन है, हाँ सही कहा आपने, स्पोर ही होगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताएं कि स्पोरोफाइट का निर्माण आखिर होता कहां से है, तो बिल्कुल सही बात, ये बनाएगा कौन, ये बनाता है जाइगोट, राइट ना। तो इस तरीके से इस पूरी जो एक सर्कल है इसी को बोलते हैं
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आपने क्या देखा, किस तरीके से अल्टरनेट हो रहा है, मतलब एक बार बॉडी प्लांट की स्ट्रक्चर यदि क्या बनती है, गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर वही गैमेटोफाइट फिर से वो रिपीट क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। अब आप समझे, कोई भी प्लांट हो, जैसा मैंने बताया आपको, एल्गी हो सकता है, ब्रायोफाइट हो सकता है, टेरिडोफाइट हो सकता है, जिम्नोस्पर्म हो सकता है और एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर क्वेश्चन आएगा कि गैमेटोफाइट कैसा होता है, फ्लूइड या डिप्लॉइड, बिल्कुल आराम से याद जवाब देना है। किसी भी स्थिति में गैमेटोफाइट फ्लूइड होता है, किसी भी स्थिति में स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। अब प्लांट बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चर है, जो डोमिनेंट स्टेज है, वो कब हैप्लॉइड होगा, वो कब डिप्लॉइड होगा, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। जैसे एल्गी का मेन बॉडी कैसा है, क्या वो हैप्लॉइड है या वो डिप्लॉइड है? टेल मी द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, इधर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, मींस स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल समझाया कि प्लांट चाहे किसी भी ग्रुप का हो, उसके अंदर दो स्टेजेस आएंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड को हम स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एक दूसरे स्ट्रक्चर की कि किस तरीके से हाँ ये इसका जो लाइफ साइकिल पैटर्न है अलग अलग प्लांट्स में ये चेंजेस हो सकते हैं। अब देखते हैं, हमारे पास जैसे मैंने बताया कि जो मेन बॉडी है वो है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक हम उसके इवोल्यूशन को, उसके विकास की जो परिक्रम है उसको देखें, उससे हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। हर साल लगभग 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इस साल भी 2 क्वेश्चन कन्फर्म है और मुझे विश्वास है कि वाले छोटे से लेकर देख के आप एक क्वेश्चन तो 100% कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। तो ये डेमो लेसन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन बिल्कुल सही, 4 नंबर की बात है। 4 नंबर का मतलब आपके रैंक लगभग 2000 तक अपग्रेड जाते हैं। तो आप देखो, ये मैंने एल्गी की बात करी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म लिया। हमने ऊपर लिखा है स्पोरोफाइट, तो क्या होगा, N या 2N? बिल्कुल सही कहा आपने, ये 2N होगा। और यदि मैं इसके नीचे की बात करूं तो ये है हमारा गैमेटोफाइट और ये गैमेटोफाइट कैसा होगा, N होगा। अब आप समझें, इसका मतलब ये हुआ, आपको याद होगा यदि मैं एक ये स्ट्रक्चर है जो फिलामेंटस एल्गी है आपका, यस, ये आपका स्पाइरोगैरास्मस है, तो ये पूरी बॉडी गैमेटोफाइट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेन प्लांट बॉडी बताओ एल्गी का कैसा है। देखने से लग रहा है इस पूरी लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा देर कौन रह रहा है, गैमेटोफाइट। इसका मतलब मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज गैमेटोफाइट, जो कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? बिल्कुल सही कहा, हैप्लॉइड होगा। लेकिन अब ध्यान दें, अब इसी से जो गैमीट्स बनेंगे वो एक गैमीट्स बनेंगे N, दूसरे का होगा हैप्लॉइड होगा, और दूसरा आप देखें ये N, ये भी हैप्लॉइड है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाता है 2N जाइगोट। यस, और ये जाइगोट इसकी फर्स्ट स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, और ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर केवल एक सेल का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन 2006 में भी आया, 18 में भी आया। क्या आया कि बताओ कि भाई जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होता है। अब आप ही सोचो, जाइगोट के बाद तो ये आगे बढ़ना नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा ग्रुप है जहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। यस, जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस, इसका मतलब वापस ये टर्न बैक टू द गैमीट।
जो फाइटिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है एलगी के अंदर क्या नहीं होना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होना। 2018 में क्वेश्चन आया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ है, जहाँ हैप्लॉइड लंबे समय तक होगा, और वो लंबे समय तक कौन होगा, एलगी में होगा। और एलगी क्या शो करता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। और इस बार 2018 में भी क्वेश्चन आया, तो जैसा एलगी वैसा ही लाइफ साइकिल पैटर्न हम प्रायः फंजाई का भी देखते। तो इस बार क्वेश्चन आया था कि फंजाई में बताओ लाइफ साइकिल पैटर्न कैसा हो सकता है, बिल्कुल एलगी के जैसा हो सकता है। तो वो क्या था, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से आपने देखा मेन जो बॉडी है एलगी का वो कैसा है, हैप्लॉन्टिक है, और ये ट्यूबेल एक सेल के लिए आया है। अब ब्रायोफाइट की बात कर लें, इसकी भी आप मेन बॉडी लें, इसका थोड़ा ज्यादा डेवलप मिलेगा। इस तरीके से आप देखें, ये इसके गैमेटोफाइट्स हैं, तो ये राइजोइड्स हो गया, ये लीफी अपेंडेजेस हो गए, और ये इसका स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, ये एक सेल का है स्पोरोफाइट, जबकि मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर पहली बार यदि कहीं बना तो वो कहाँ बना है, ब्रायोफाइटा के अंदर बना है। उसी तरीके से गैमेटोफाइट में पहली बार लीफ कहाँ दिखाई दिया, आप देखें ये लीफी अपेंडेजेस है, क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट लीफी गैमेटोफाइट कौन हो सकता है, बिल्कुल सही, वो हो सकता है ब्रायोफाइट प्लांट। नाउ यदि हम बात करते हैं टेट्रोफाइट की, तो टेट्रोफाइट में आप देखें कि यहाँ पर इसके स्पोरोफाइट जो होते हैं ये माना गया है कि भाई ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है। जबकि ये आप देखें हार्ट शेपेड स्ट्रक्चर है, ये गामेटोफाइट स्ट्रक्चर है, फीमेल गामीट्स ऊपर, मेल गामीट्स नीचे, एंथ्रेडिया, आर्किगोनिया पढ़ेंगे डिटेल्स हम लोग। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब आप देखें ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल सही, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। याद कीजिए यदि आपने पाइनस को देखा होगा, पाइन इस तरीके से कोनिफर स्ट्रक्चर होते। यहाँ पे आप देखें ये इसका गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर है वो है। उसी तरीके से जो सबसे वेल डेवलप्ड स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है वो एंजियोस्पर्म का है, मैंगो ले लें आप, और सबसे छोटा वेरी स्मॉल जो गैमेटोफाइट है वो किसका है, एंजियोस्पर्म का। तो आप क्या देख रहे हो, फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म कौन सी बॉडी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, एलेब्रेट हो रही है, एडवांस हो रही है, वो कौन सी हो रही है, स्पोरोफाइट। Sporophyte is increasing. So question will come, single cell sporophytic body found in, yes, algae. Okay, now without leaf sporophytic structure found in algae as well as bryophyta. First leafy structure in sporophyte, yes, pteridophyta. First leafy structure in bryophyte, यहाँ आपने देखा। इस तरीके से एक पूरी लाइफ साइकिल पैटर्न में क्वेश्चन आएगा आपको कि बताओ किसका लाइफ साइकिल पैटर्न कैसा होता है। तो हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लिया, आइए अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न को, इससे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। यदि हम लाइफ साइकिल पैटर्न देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। Yes, in this haplontic life cycle क्या होगा? First of all, आप जाने कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि यदि ये लाइफ साइकिल ग्रो कर रहे हैं तो आप देखोगे मैक्सिमम फेज इसके एंड होंगे, थोड़े देर के लिए ट्यूबेल का फॉर्मेशन हुआ है। इसका मतलब एंड डेवलप है, एंड ज्यादा एडवांस, और के बाद जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा, बिल्कुल सही, ये फ्री लिविंग है, ये फोटोसिंथेटिक है, ये डोमिनेंट है, और ये
यूजुअली मल्टी सेल्यूलर है। हाँ, यूनिसेल्यूलर एक केस लेते हैं, वो एक्सेप्शन अपने एनसीईआरटी में है, अब प्रोटिस्टा में डाला गया है, एंड दैट इज द क्लेमाइडोमोनास। तो इस तरीके से ये गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। यदि हम इसके स्पोरोफाइट पे ध्यान दें तो इसके स्पोरोफाइट वन सेल है, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये डोमिनेंट भी नहीं है, और ये गेट फूड फ्रॉम गैमेटोफाइट। बिल्कुल। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बातें हो रही है, अब इसे समझिए। ये है पूरा हमारा गैमेटोफाइट। आप देख रहे हो गैमेटोफाइट लंबे समय तक आया है, इसका मतलब ये कैसा फेज हो गया, डोमिनेंट। अब देखो ये ग्रीन है, जब कभी ग्रीन होगा तो वो फोटोसिंथेटिक होगा, और जब फोटोसिंथेटिक होगा अपना भोजन खुद बनाएगा तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसी को हम बोलते हैं फ्री लिविंग। तो ऑलवेज याद रखना है, जो भी फ्री लिविंग है वो कैसा है वो इंडिपेंडेंट होता है, और डोमिनेंट इसलिए क्योंकि वो फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, तो डोमिनेंट फेज में रहेगा। मैक्सिमम आपने देखा मल्टीसेलुलर, केवल एक सिंगल सेल हमारा सेल अलगी है, कौन, क्लेमाइडोमोनास, जो विटेकर के हिसाब से प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अब ध्यान दीजिए स्पोरोफाइट की हम बात करें तो ये एक सेल है, कितने सेल का, केवल एक जाइगोट आएगा, एम्ब्रियो तो आती नहीं है इसके अंतर्गत, तो एम्ब्रियो नहीं आना है, नॉन एम्ब्रियोफाइट है, फ्री लिविंग नहीं है, जो ग्रीन नहीं है, फोटोसिंथेटिक नहीं है, और डोमिनेंट भी नहीं है। तो याद रखना है, बहुत सिंपल, एक ही वर्ड को बार बार खिलाते हैं कि जो फ्री लिविंग कौन हो सकता है, डिपेंडेंट कौन हो सकता है, इंडिपेंडेंट कौन हो सकता है। तो जो ग्रीन है वो फोटोसिंथेसिस होगा, भोजन बना लेगा अपना, तो उसकी डिपेंडेंसी खत्म। तो याद रखना तीनों एक ही टर्म है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है तो फ्री लिविंग है, और फ्री लिविंग है तो दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा, वो डोमिनेंट है। तो चारों पॉइंट आप ध्यान दे, एक ही तरह की बातें हो गई। अब आप देखें एग्जाम्पल समझे तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के लिए, और मोस्ट ऑफ एल्गी, मोस्ट ऑफ जो एल्गी है वो क्या शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ एल्गी क्या है, एम्ब्रियोफाइटा या नहीं है, यस एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, वैस्कुलर टिश्यूज भी नहीं आया, एम्ब्रियो भी नहीं आया, एक सेल का जाइगोट बना है इसके अंतर्गत, राइट ना। तो इस तरीके से सभी एल्गी इसमें आएंगे। अब आगे हम यदि एल्गी की बात करें तो हमारे पास तीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। एक नजर उस पे भी डाले, बच्चे बहुत डरते हैं उसके एग्जाम्पल्स को लेके। आइए आपको एग्जाम्पल का ट्रिक्स बताता हूँ, उससे आपको सारे एग्जाम्पल याद रहेंगे, पता तो चले कि एल्गी कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं एल्गी के एग्जाम्पल्स। तो विटेकर के हिसाब से भी हम बात करें तो हमारे पास तीन तरह के एल्गी हैं, एक तो ग्रीन एल्गी, दूसरा ब्राउन एल्गी, और तीसरा रेड एल्गी। इसके अंतर्गत हम बात करें तो टोटल 6 एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में वही बार बार एग्जाम्पल बन के आता है, जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वर्स। हाँ ये वॉल्वर्स ध्यान दो, 2017 में क्वेश्चन आया, कॉलोनियल एल्गी कौन है, ये वॉल्वर्स, स्पाइरोगाइरा, ईलोथ्रिक्स और कारा। तो आप ध्यान से समझे, ये एक सेल का है, यूनिसेलुलर है, लेकिन नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल। क्लेमाइडोमोनास ये भी एक सेल का है लेकिन ये मोटाइल है। वॉल्वर्स, बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास मिलकर जो कॉलोनी बनाती है, इसी कॉलोनी को हम बोलते हैं वॉल्वर्स। जबकि हमारे पास ये फिलामेंटस फॉर्म में पाया जाता है, कौन, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स एज वेल एज कारा। तो टोटल हमारे पास 6 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ब्राउन एल्गी, इसके लिए ट्रिक याद रखना, आप
ऐसे याद रहेगा, फेक फेंकना, फेक साला गाली है पर चलेगा यहाँ, फेक साला डिक्टियोटा याद रहेगा। तो ये एफ क्या है, बिल्कुल सही, फ्यूकस है, ई एक्टोकार्पस है, के केल्प है, साला टर्गेटम, एल ए लैमिनेरिया और डिक्टियोटा याद हो गया। निमोनिक्स क्या दिया मैंने, बिल्कुल सही, मेरे साथ बोलो, फेक साला डिक्टियोटा, फेक साला डिक्टियोटा। और ये साला को आप खा सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये 2018 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है ये, कि भाई ये जो टर्गेटम और लैमिनेरिया है ये फूड के जैसा क्या हम यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे भी अलग अलग साले को आप खा सकते हो, राइट ना। नाउ अब आप करते हैं रेड, GGPP, बहुत इजी एग्जांपल, GGPP ये कौन सा है, ग्रैसिलेरिया, जेलिडीनियम, पोरफायरा एंड पॉलिसिफोनिया। तो इस तरीके से चार है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ये दोनों कैसे हैं, यही है एगैरोफाइटा, ये अगर जो प्रोड्यूस करते हैं एगैरोफाइटा, अगार बनाते हैं, यही अगार जो है वो सोलिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, टिश्यू कल्चर में भी हम यूज कर लेते हैं इसको। तो आई थिंक एल्गी के एग्जांपल याद हो गए, चलो मेरे साथ एक बार फिर से देख लो। ग्रीन एल्गी में 6 हो गए, कौन, एक सेल का बिना मोटाइल वाला क्लोरेला, एक सेल का मोटाइल वाला क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनी बनाने वाला वॉल्वॉल्व, फिलामेंटस, दो स्पाइडोगाइडोसिस और वेल डेवलप्ड कैरा। यहाँ मैंने बताया सिक्स वाला डिक्टियोटा, यहाँ बताया GGPP। तो मैंने कहा ऑलमोस्ट जितने भी एल्गी हैं लगभग सभी कुछ एक्सेप्शन से लास्ट में बताऊंगा, ये सभी कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले होते हैं ना। दूसरा जो अपना लाइफ साइकिल पैटर्न की यदि हम बात करें तो वो लाइफ साइकिल पैटर्न आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है यदि हम देखें तो वैसी स्थिति में नाम तो स्पष्ट है, हैप्लॉइड पहले आएगा, डिप्लॉइड उसके बाद। तो ये दोनों केसेस में देखा गया है, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। जो ब्रायोफाइटा में यदि मैं मेन प्लांट बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे गैमेटोफाइट है, उसके बाद आता है स्पोरोफाइट। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, बाद में गैमेटोफाइट आता है। क्लियर? बट आप समझे, ये जो गैमेटोफाइट है ये फ्री लिविंग है, बट यहाँ पे ये फ्री लिविंग नहीं है। ये आप देखें ये ग्रीन है, और मैंने बताया ग्रीन होगा तो ये इंडिपेंडेंट होगा, ये नहीं है। ये आप देखें ये डोमिनेंट फेज में पाया गया, जबकि ये डोमिनेंट नहीं है। क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा प्लांट बॉडी है जहां स्पोरोफाइट पार्शियली या कंप्लीटली डिपेंड होते हैं, किस पे, ब्रायोफाइट्स पे। ये 2006 का क्वेश्चन, राइट नाउ। तो इस तरीके से याद रखना है कि आप देखो मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट का था वो गैमेटोफाइट है। अब देखो ये लीफी है पानी एरिया में, these are the green leaves, so it will perform its photosynthesis, but this is not very much green। पानी की व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, इसलिए ये अपने पानी और भोजन को अपने इसी बॉडी से लेगा, इसीलिए मानते हैं ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। शुरू में ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके अंदर कुछ ग्रीन सेल्स बनने लगते हैं तो डिपेंडेंसी पहले से थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ब्रायोफाइटा। ठीक है, और इस ब्रायोफाइटा में हमारे पास एग्जाम्पल जो आते हैं वो रिक्सिया के हैं, मार्केंसिया के हैं, स्पैगनम के हैं, पॉलीगोनम के हैं, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए, क्लियर ना। अब आप बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। अब ध्यान दें यहाँ पे शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग कैसे, अभी तक मैं जो बात कर रहा था ये सब गैमेटोफाइट्स थे, अब ये गैमेटोफाइट्स यहाँ है लेकिन मेन बॉडी जो है ये दोनों बराबर है।
कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा ग्रुप है जो दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं? बिल्कुल सही, ये टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा में भी दो ग्रुप होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। तो ये होमोस्पोरस की बात हो रही है कि होमोस्पोरस में जो आप देखेंगे वो क्या है, एक गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो गए। तो आप देखिए जो ये स्पोरोफाइट इसका फ्री लिविंग है, ये इसका डोमिनेंट है, ये इसका ग्रीन है, ये इसका इंडिपेंडेंट है। मजे की बात देख ले कि यहाँ भी ये सब इसके लिए भी है। तो आपको क्या लगेगा कि पहली बार ऐसा देखने में मिला अमॉन्ग द लास्ट थ्री कि कोई दोनों बॉडी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करते हैं। बट मैंने कहा कि मैक्सिमम जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं किसके, होमोस्पोरस के। लेकिन जो हेटेरोस्पोरस वाले टेरिडोफाइट्स होते हैं वहां पे देखा गया है कि जो गैमेटोफाइट है उसकी डिपेंडेंसी, क्योंकि वो बॉडी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे ही होती है, तो उसकी डिपेंडेंसी देखी गई किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है स्पोरोफाइट में, गैमेटोफाइट में किसकी, टेरिडोफाइटा में आप बात किसकी कर रहे हैं, या आप स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं या फिर गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। यदि उसके एग्जाम्पल्स में देखें तो यहाँ पे फिलाडेल्फिया है, लाइकोपोडियम है, साइलोटम है, तो स्टीला लाइक साइलो, स्टीला को साइलो बहुत पसंद है, और वो इक्वल पसंद करती है एलियंटम को भी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो एक निमोनिक्स के साथ, स्टीला लाइक साइलो और इक्वल कौन, एडिएंटम। स्टीला लाइक साइलो इक्वी एडिएंटम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किसके लिए, टेरिडोफाइट्स के लिए। तो जितने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स होंगे वो सभी कैसे होंगे, हैप्लोडिप्लॉइडिक वाले होंगे। ये अलग बात है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ध्यान से देखिए, तो आप बोल सकते हो मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा का 2n स्पोरोफाइट, बट मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का नॉट 2n, यस इट इज n गैमेटोफाइट होगा। ये ओवरऑल इसमें दिया हुआ है, बट इंडिविजुअल बात करें तो स्पोरोफाइट जो है वो मेन बॉडी हो गया टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइटा को बोल सकते हो डिप्लोहैप्लॉइडिक भी, लेकिन एनसीईआरटी ने एक साथ दिया दोनों को, तो चलो एनसीईआरटी गीता हमारी उसको मानते चलेंगे, नीट में से क्वेश्चन आएंगे आगे। तो ये हो गया। अब लास्ट जो अपने पास है वो आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, थर्ड वन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सभी जिम्नोस्पर्म और सभी एंजियोस्पर्म के पौधे में होते हैं। तो यहाँ पे दो स्थिति आएगी, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होगा, गैमेटोफाइट होगी, लेकिन जो स्पोरोफाइट है ये फ्री लिविंग होगा, ये फ्री लिविंग नहीं होगा। ये फोटोसिंथेटिक होंगे, ये नहीं होंगे। ग्रीन होगा तब तो फोटोसिंथेटिक होगा, ये ग्रीन नहीं होगा। ठीक है, ये वेल डिफरेंशिएटेड होंगे रूट में, स्टेम में और लीफ में, जबकि यहाँ ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो आप फिर से देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट है वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट पे। किसके लिए, भोजन के लिए। तो वैसी स्थिति में हमने ये देखा कि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो हमारा किसका आ गया, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का। तो अब हम इसको देखें किस तरीके से ये दोनों ही डोमिनेंट फेज में है। उससे रिजल्ट क्वेश्चन आएगा सबसे रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट किसका, तो एंजियोस्पर्म का। सबसे एडवांस किसका, एल्गी का। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट अगर बात कर ले जो इसके एक्सेप्शंस होते हैं और कंक्लूजन की हम बात करें, तो कंक्लूजन एंड एक्सेप्शन, कंक्लूजन एंड एक्सेप्शन। तो कंक्लूजन क्या आया कि जो जितने भी एल्गी होंगे, मोस्टली जो एल्गी होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स है वो सभी होंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। टेरिडोफाइट भी कैसे होंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कैसा होगा, ये डिप्लॉन्टिक। ये कंक्लूजन बिल्कुल आपने याद रखना है। एक्सेप्शन की बात याद रखें तो उसके लिए ट्रिक्स याद रखेंगे, पॉली
याद हो गया क्या करें? फेक पॉली। ये जो फेक है बिल्कुल सही याद करा आपने, ये ब्राउन एल्गी का है और ये रेड एल्गी का, ठीक है। ये ही फ्यूकस है और फ्यूकस की जो लाइफ साइकिल पैटर्न होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिप्लॉन्टिक होती है किसकी तरह? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरह, जबकि ये एक्टोकार्पस है और केल्प है और ये पॉलीसिफोनिया, ये तीनों ही लाइफ साइकिल शो करते हैं। कैसा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इस तरीके से क्या देखा? एल्गी में यूजुअली एल्गी कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक। लेकिन कुछ ऐसे एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, जो हैप्लॉन्टिक हमेशा नहीं होते। जैसे फ्यूकस हमारा डिप्लॉन्टिक होता है, एक्टोकार्पस और केल्प हैप्लॉन्टिक होता है, रेड एल्गी का जो पॉलीसिफोनिया है वो कैसा होता है? ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो इस तरह याद रखना आपको फेक पॉली, और ये आपको एक्सेप्शन से बिल्कुल याद होंगे, सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस लेक्चर को फिर से दोबारा सुनना, नोट्स कॉपी लेके बैठना, एक एक बातों को आप लिख लेना और लिखने के साथ ही जब आप क्वेश्चन बनाओगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी हमारे नोट्स होंगे उससे 99% क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट का क्वेश्चन हो, किसी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन हो, यू विल बी अचीव। यस, इसलिए अचीव यू आर विद ABC, ये BC, yes, it is right among biology classes. So thanks from this Dr. Mukesh Kumar and wish you the best for your grand success. Thank you.